है ना। केसलेट सेम है बट प्रॉब्लम 2-3 प्रॉब्लम जो है उसके अगेंस्ट चेंज कर दी हैं, तो वो वी मे बी फॉर्चुनेट कि ऐसी 1-2 प्रॉब्लम अगर रिपीट हो जाती है तो क्योंकि हम पहले से उसे समझे हुए होंगे तो चांसेस हैं कि हम एटलीस्ट उस प्रॉब्लम में एज ले पाएंगे। ये एक प्रॉब्लम है, दैट इज इस केसलेट को हम डिस्कस करते हैं। रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। इज इट ओके? चिरंजीव, आस्था? यस सर। यस सर। ठीक है प्रकृति? यस सर। अच्छा, कुछ आप लोग ये बताइए कि किस तरह की प्रॉब्लम, जैसे वो प्रॉब्लम लेंदी हो गई थी, उस तरह की प्रॉब्लम थोड़ी सी पहले देख लीजिएगा एक बार फटाफट, सारी प्रॉब्लम्स पर एक बार रिव्यू कर लीजिएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी है या इसके अंदर कुछ एक कई बार देखने से समझ में आ जाता है कि इसको थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, है ना। कुछ उसके अंदर मार्क का ऑप्शन होता ही है जिसको आप बाद में लेटर रिव्यू कर सकते हो। तो उस तरह से भी आप प्रॉब्लम को करने का एक टेक्निकल अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं इस प्रॉब्लम को। सीमा वाज अ फाइनेंस मैनेजर इन एमएनसी एंड फेल्ट दैट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड वर्कप्लेस हैम्पर्ड हर कैरियर ग्रोथ। Frustrated, she quit the job and started a company. While starting her company, Seema decided that she would have equal proportion of males and females. Over the next 6 years, Seema emerged as a very successful entrepreneur and extended her business to 8 locations in country. However, Seema recently started facing an ethical dilemma because she realized that female employees were not willing to travel across cities and work late hours. As the work required them to do, male employees did not hesitate undertaking such work. Seema started to feel the pressure of reducing the proportion of female employees. On the other hand, she is aware that equal representation was one of the strongest reason for her to have founded the company. केस ये पहले हम देख चुके हैं। अभी एक बार फिर से आप लोग मैं 2 मिनट के लिए शांत रहूंगा, आप प्लीज एक बार इसे जल्दी फटाफट रिव्यू कर लीजिए। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए अब देखते हैं what should she do as a conscientious female entrepreneur if if unwilling female employees could be given assignments which do not require travel and involve less overtime. B, reduce the number of female employees as it is a business requirement. She should not let anything affect her business. Let the status quo continue. D, henceforth hire only male employees. E, she should close the business. So what does C mean? C is let the status quo continue. जैसा चल रहा है ऐसे चलने देते हैं। I think A sir. The A. The A. Yes sir. If the unwilling employees could be given assignment that which do not require travel and involve less overtime. ऐसा Yes, क्यों? sir. क्यों ऐसा कर रही है वो? ये क्यों मोस्ट अप्रोप्रिएट है? क्योंकि उनकी कंपनी की जो पॉलिसी है वो भी मतलब रिटेन रहेगी और मतलब फीमेल एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो हाँ, कंसेंटियसनेस भी रिफ्लेक्ट हो रही है इससे। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है इक्वल रिप्रेजेंटेशन को, जो रेशो है उसको बनाए वही रखने का, मेंटेन रखना है ना, हाँ, उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो इक्वल, तो इसलिए ये कंपैरेटिवली बहुत डायरेक्ट और क्लियर रेस्पॉन्स है।
You, a recruitment manager, are interviewing Mayank, a hardworking young man who has a problem in speaking fluent English. He has studied in vernacular medium schools and colleges. Among the following options, what would you choose to do if your company has vacancies? A, I would hire him at all costs. I would hire him for the job he is good at and provide training in other areas. I would hire him for a production and finance job, but not for the marketing job, which requires good communication skills. I would ask him to improve his communication skills and come back again. I would not hire him as he might be a burden on organization because of poor communication skills. Sir, C. Yes sir, C appropriate लग रहा है काफी. I would hire him for a production and finance job, but not for marketing job, which requires good communication skills. और क्वेश्चन में क्या बोला है? You, a recruit manager, are interviewing Mayank, a hardworking man who has a problem in speaking English. He has studied in a work medium. Among the following option, which would you choose to do if your company has vacancy? The B. बी भी तो हो सकता है. हाँ, B is rather very मतलब better than C, I suppose. क्योंकि अभी कुछ ऐसा इसके अंदर जो अगर आप देखो तो C, हम I would C hire में him for फिक्स कर production रहे हैं कि finance फाइनेंस job, but not for जॉब बट marketing job, मार्केटिंग जॉब में नहीं which रखूंगी. require good communication skill. उसमें बहुत स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन प्रोडक्शन और फाइनेंस के लिए दी भी नहीं है. बस वो एक हार्ड वर्किंग यंग मैन है, बस उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती है. और आप क्या करेंगे उसको चूज करने के लिए इफ योर कंपनी हैज अ वैकेंसी? कोई भी रिक्रूटमेंट मैनेजर क्या करेगा? स्ट्रेट एंड डायरेक्ट कि कोई भी मैनेजर उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को वो काम देगा ये देख करके कि वो किस काम को करने में अच्छा है. इज इट क्लियर और नॉट? ऐसा है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता है? वानी? Yes, sir. परिधि? Yes, sir. B ज्यादा appropriate लग रहा है. बी ही अप्रोप्रिएट है. सी, a city of Nagar has a population of 10 million. 2 millions among them are rich, 3 million poor, and 5 million belong to the middle class. Saundarya Cosmetics manufactured and sold beauty product to rich class at a premium price. Its products were very popular with customers. Many people from the middle and poor segment of the population aspired to buy these products but could not afford because of the high prices. Of late, sales growth has been stagnating in the rich segment. Which of the following is the best option for Saundarya Cosmetics to maximize long-term profit? समझ में आई ये प्रॉब्लम? Yes, sir. थोड़ा सा समझा दीजिए एक बार बोल के. तो सर ये कंपनी है जो प्रोडक्ट सेल कर रही है बट उसके प्राइसेस काफी हाई हैं और जो मिडिल क्लास और थोड़ा पुअर पॉपुलेशन है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है. सो इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड दैट व्हाट शुड बी डन कि मतलब जो ग्रोथ स्टैग्नेटेड, जो उसका सेल है जो स्टैग्नेटेड है वो थोड़ा फ्लो में आ जाए और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स हो, ऐसा कुछ है. the sale growth has been stagnating, क्या मतलब होता है इसका? रुकी हुई है. हाँ, मतलब रिच सेगमेंट में वो एक लेवल अचीव कर लिया और उसके बाद वो बढ़ नहीं रही है. मतलब so we can say कि एक पॉपुलेशन का ही पार्ट उसको खरीद रहा है, बाकी उसकी कुछ ग्रोथ नहीं है. हाँ, अब उसके बाद रेस्पॉन्सेज हैं. ए,
sell the same products at lower prices to middle and poor class, sell similar products of different quality standard with different brand names to middle class and poor class, sell its product under different brand names to middle and poor class, continue to target rich only and hope that today's middle class would be tomorrow's rich class. You target middle class as it is the largest segment and forget about the rich. सर बी। सर बी होगा। कैसे? सर क्योंकि उसमें क्लैरिटी पूरा दिया हुआ है कि अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट्स मतलब अगर आप मिडिल क्लास और पुअर क्लासेस के लिए बना रहे हो तो आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में थोड़ा चेंजेस तो करना पड़ेगा ना, तो इस हिसाब से बी लग रहा है। Sell similar products to different quality standards with डिफरेंट ब्रांड नेम्स। different brand names. सर ए नहीं हो सकता क्या? So पढ़ो एक बार फिर से। सर उनके जो प्रोडक्ट प्राइस है, मतलब उनका जो प्रोडक्ट है उनके अगर प्राइस कम करके उनको बेचे हम, तो यहाँ फिर पे प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, लेकिन सर उसमें लॉस कंपनी होगा अपना ना प्रॉफिट भी more। तो अच्छा, okay। देखेगी। कंपनी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देख रही है, तो ए कैसे हो सकता है? सेम प्रोडक्ट को लो Sell the प्राइस same products, same product at lower price. And it would be तो like सर an वो index for the मैक्सिमाइज rich थोड़ी ना people, करेगा no? प्रॉफिट, उससे तो मतलब लॉस तो नहीं कहेंगे, बट देन फिर वो सर मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस पे ही नहीं, पड़ जाएगा। दूसरा एक बात ये है कि रिच क्लास जिस प्रोडक्ट का पैसा दे रहा है, तो रिच क्लास को भी या तो आप कम करो पैसे को, आप वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ना कि आप रिच क्लास से तो सेम प्रोडक्ट का आप ज्यादा पैसा ले रहे हो और मिडिल और पुअर क्लास से आप सेम प्रोडक्ट का कम पैसा ले रहे हो, है ना। इथिकल ग्राउंड पे तो ये चीज ठीक नहीं है ना। स्टेटस वाली बात नहीं आ जाएगी, क्योंकि रिच वालों की तो आदत ही होती है कि ब्रांड नेम्स के पीछे जाना है, टैक्स के पीछे जाना है, ज्यादा पे करना है कॉन्शियसली। नहीं, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आप एज ए प्रोड्यूसर, एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए बिजनेस एंटिटी, आई एम नॉट आई शुड नॉट से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड ऑल, एज ए बिजनेस ओनर, मतलब एज ए मार्केट में अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को अगर वो लोअर और मिडिल क्लास को अगर वो दे देगा कम प्राइस में, और मतलब आप ऐसे मानिए कि अगर कोई एक रेस्टोरेंट है, अगर वो एक अच्छी डिश बनाता है और उस डिश का वो किसी भी एक अच्छे सेगमेंट से अगर वो मान लीजिए 270 और 280 और 300 रुपीज पर एक कोई, अगर मान लीजिए वो एक उस डिश का लेता है छोटा सा, और कोई गरीब आ जाता है या मिडिल टर्म, तो ऐसा थोड़ी ना कि सेम को वो 140 से 150 से 200 रुपए में देगा। अब वो दे सकता है, यस वो दे सकता है इसको, कंडीशन ये होगी कि उसको फिर रिच को भी सेम ही प्राइस में उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तरह की अनइथिकल प्रैक्टिस भी काउंट की जाएगी कि अगर मान लीजिए किसी का कोई पैसे वाले का बच्चा अगर हमसे पढ़ना चाहता है तो हम उससे ज्यादा पैसा ले लें सेम सेट ऑफ सर्विसेज के, और किसी का कम पैसे वाला बच्चा है तो सब कम पैसे ले लें सेम सेट ऑफ सर्विसेज के। मान लीजिए हम किसी को पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है ना, किसी के पास ज्यादा पैसा है तो मतलब हम उसे ऐसे थोड़ी ना कि उससे ज्यादा पैसा, उससे फीस ज्यादा ले लें, या वो नहीं होगा। हाँ, ये है कि सिमिलर प्रोडक्ट होंगे, सिमिलर प्रोडक्ट होंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड भी डिफरेंट होगा, क्योंकि आप तभी जो है प्राइस को डाउन कर सकते हो या अफोर्डेबल बना सकते हो उस सेगमेंट के लिए, और आप ब्रांड नेम भी डिफरेंट करो फ्रॉम सिंस कि आपको अपना एक क्लास भी बचा के रखना है। जो प्रीमियम प्राइस के रेफरेंस में जो ब्रांड देखे जाते होंगे, डिफरेंट ब्रांड नेम जो है वो भी आप रख सकते हो क्वालिटी, डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ। तो इसलिए ये कंपैरेटिवली ये आप में से कितनों को ध्यान भी है, ये भी बताइए। आस्था, ध्यान है इसका रेस्पॉन्स? प्राकृति? यस सर, इट वाज फर्स्ट टाइम करी मैंने, बीच में यस क्लास सर, ये वाले मैं कर चुकी थी तो मुझे इसका रिस्पांस याद था। हाँ सर मैंने तो अभी भी फर्स्ट टाइम ही किया। हाँ, तब आस्था आपने किया है? यस सर, करा है। संस्कृति? सर मुझे तो बी लग रहा है। हाँ, तो वानी?
Yes, so same B. वानी Sir, B. क्या रीजनिंग है इसके बिहाइंड? अगर आप भी कह रहे हो तो रीजनिंग क्या है आपका? जो हमने बोला है उससे एग्री कर रहे हो या खुद का भी कोई एक इनपुट है? सर जो आप कह रहे थे मैं वही कहती एज अ रीजन। और चिरंजीव? सर अब बी सर, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था सर ए में और बी में, बट फिर वही बी। उसके बाद a database software manufacturing company found that the product it has launched recently had a few bugs. The product has already been bought by more than 1 million customers. The company realized that bug could cost its customer significantly. However, if it informs the customer about the bug, it feared losing credibility. What would the most ethical option? What would be the most ethical option for the company? Apologize and fix up the bug for all customers, even if it has to incur losses. B, do not tell customer about bugs and remove only when customers face problems, even if it means losses for the customer. C, keep silent and do nothing. D, keep silent but introduce an improved product that is bug free at the earliest. E, take the product off the mark and apologize the customer. सर ए। मोस्ट इथिकल ऑप्शन क्या होगा? सर सर ए ए। और ई में दोनों में हो सकता Yes, So sir, I D. A and E. है। यस सर, it should be D. It can be D. D, D. Yes sir. E or D. Sir D. Keep silent but introduce an improved product. सर बट डी Introduce एथिकल नहीं होगा ना। ये एंड नहीं होगा, इसे हटा देते हैं। इंट्रोड्यूस एन A. इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट दैट इज बग फ्री एट द अर्लीस्ट। ए होना चाहिए, क्योंकि जब हम कंपनी की लॉस और प्रॉफिट के बारे में भी हम देख रहे होते हैं, हमें एथिकल तो होना ही पड़ता है, इवन इफ वी हैव टू सैक्रिफाइस लिटिल बिट, तो हमें करना चाहिए, क्योंकि इससे वो भी फिक्स हो जाएगा, लाइक अपोलोजाइज भी हो जाएगा, और हम तो लाइक फिक्स भी हो जाएगा बग, तो ये बात है। एंड सर इनने पैराग्राफ में आखिरी में खुद से ही बता के रखा हुआ है कि इफ इट इन्फॉर्म्स द कस्टमर्स अबाउट द बग इट फियर्ड लूजिंग द क्रेडिबिलिटी। हाँ तो ऑलरेडी काफी ए वाला ऐसा जस्टिफाइड लग रहा है ऑप्शन। ए। हाँ सर जी। पर उनके फियर की वजह से वो कस्टमर्स को अनअवेयर तो नहीं रख सकते ना। हाँ सही बात है। डी किसने बोला था? डी सर मैंने किरण। किरण क्यों बोला तुमने डी? सर बिकॉज अगर वो कस्टमर को बता देते हैं तो कस्टमर लूज हो जाएंगे, राइट? सो इट्स बेटर कीप साइलेंट एंड एज सुन एज अर्लीस्ट यू कैन। लेकिन अब ये भी तो देखो ना कि अगर वो साइलेंट रह जाते हैं तो वो उस बग की वजह से उनका कस्टमर्स का नुकसान भी तो बहुत होने के बहुत हाई चांस हैं। लिखा हुआ है बट ना यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है कि एज सुन एज अर्लीस्ट, लाइक जितना जल्दी हो सके उसको नहीं, improve ऐसा हो करो। सकता है कि कस्टमर का लॉस हो रहा हो, उस बेचारे को पता ही ना चल रहा हो, और जब पता चले तब तक उसका इतना लॉस हो गया हो, और फिर तब उनका बग फ्री प्रोडक्ट मार्केट में आए। और सर क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि क्या एथिकल, मतलब व्हाट मोस्ट एथिकल इथिकल है ना, कैन टेक। मोस्ट इथिकल हाँ। आपको देखना है ना। चुप रहना और नुकसान होते रहना और तब तक अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहना, ये थोड़ा सा इथिकल नहीं है। थोड़ा सा क्या, ये तो बिल्कुल इथिकल ही नहीं है अगर इन्होंने मोस्ट इथिकल बोला है तो। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ लोग नहीं करते होंगे ऐसा, मे बी प्रैक्टिकली इट मे बी पॉसिबल, सम कंपनीज मे बी having that policy or that approach to deal the products, है ना। तो ये is most appropriate one. बाकी सारे बहुत डिसीविंग से हैं, तो हम तो ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। Read तो the following caselet and choose the best alternative. Mr. Rajiv Singhal, the chairman of the board of directors of Loha India Limited,
a steel manufacturing company, had just been visited by several other directors of the company. The directors were upset with the recent actions of company's president, Mr. Ganesh Thakur. They demanded that the board consider firing the president. Mr. Thakur, recently appointed as president, had undertaken to solve some of the management employee problems by dealing directly with the individuals as often as possible. The company did not have a history of strikes or any other form of collective action and was considered to have good work culture. However, Mr. Thakur felt that by dealing directly with individuals, he could portray the management's concern for the employee. An important initiative of Mr. Thakur was to negotiate wages of the supervisor with each supervisor. In these negotiation meetings, he would not involve anyone else, including the personal department which reported to him, so as to take an unbiased decision. After negotiation, a wage contract would be drawn up for each supervisor. This, he felt, would recognize and reward the better performers. Mr. Thakur successfully implemented the process for most of the supervisors, except those working in night shift. With that of the supervisors of the day shift. For several days, Ramlal, a night shift supervisor, had been trying to seek an appointment with Mr. Thakur. He was disgruntled not only over his failure to see the president, but also over the lack of discussions about his wage contract prior to its being affected. As a family man with 6 dependents, he felt his weekly wage should be higher than that granted to him. Last Thursday afternoon, Ramlal stopped by President's office and tried to see him. Mr. Thakur's secretary refused his request on the grounds that Mr. Thakur was busy. Infuriated, Ramlal stormed into the president's office and confronted the startled Mr. Thakur. Stood up and told Ramlal to get out of his office and express his grievance through official channel. Ramlal took a swing at the president, who in turn punched Ramlal on the jaw and knocked him unconscious. समझ में आया? वानी, केस समझ में आया? आशिता? Yes, sir. हाँ, फिर से बताओ। एक बार आप खुद से भी पढ़ के देखिए जरा। स्वराज? यस सर, बट नॉट कंप्लीटली। फिर से पढ़ रहा हूँ। पढ़िए। चिरंजीव? हाँ सर। समझ में आया केस? हाँ सर, एक बार और पढ़ रहा हूँ सर, थोड़ा। पढ़िए। पढ़ लो, मुझे बताइए, मैं स्क्रॉल कर लूंगा ऐसे ऊपर की तरफ। Sir, scroll. Yes, sir.
पढ़ लिया पूरा? यस सर। यस सर। सर हाँ जी। ये हो सकता है क्या The इनकंसिस्टेंट? most important causal factor for this entire episode could be, सर एपिसोड क्या है? इनकंसिस्टेंट एपिसोड है कि रामलाल गए ऑफिस में, प्रेसिडेंट ने मना किया और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गए रामलाल जी। उन्होंने प्रेसिडेंट के ऊपर किसी तरह से अटैक करने की कोशिश किया, जो भी किया उसके अगेंस्ट उन्होंने जो है प्रेसिडेंट ने रामलाल को अगेन इन रिटेलिएशन असॉल्ट किया। ठीक है, तो ट्राई द फॉलोइंग। इस एपिसोड में क्या है, जैसे पूरे एक तो ये था बिल्कुल इमीडिएट, जो मतलब आफ्टर मैथ कह सकते हैं जिसे हम, ड्यू टू दिस पॉलिसी एंड दिस लैक ऑफ पॉलिसी और दिस द क्लैरिटी जो नहीं रही उस सिचुएशन में। तो ट्राई द फॉलोइंग डिवाइड most important causal factor, trying to follow a divide and rule policy in his dealing with supervisors, inconsistent dealing of Mr. Thakur with supervisors, paternalistic approach towards mature individuals in the organization, legalistic approach to employees' problems, inadequate standard of measurement of supervisors on job performance। हाँ जी सर इनकंसिस्टेंट डीलिंग। क्यों इनकंसिस्टेंट क्यों? सर बिकॉज रामलाल हैड बीन ट्राइंग टू मीट हिम एंड वो मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से ही गॉट इन्फ्यूरिएटेड एट द एंड। नहीं, इसमें ये इनकंसिस्टेंसी नहीं, इनकंसिस्टेंसी पहले से इनकंसिस्टेंसी समझो क्या होता है। सर मतलब मेरे को ऐसा लगा कि नाइट शिफ्ट वर्कर्स के साथ तो उनकी ज्यादा टच में थे नहीं, तो इसलिए लगा था कि इनकंसिस्टेंट। यस सर। हाँ समझे चिरंजीव? सर मेरे को ये भी लग रहा है कि इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड क्यों लग रहा है? सर, मतलब उसमें मेन प्रॉब्लम तो तब आई ना मिस रामलाल को, मतलब और उसमें लिखा हुआ भी है कि जो नाइट शिफ्ट के जो वर्कर्स थे उनको उसने मतलब उस तरह से डील नहीं करा जिस तरह से उसने जो सुबह वाली शिफ्ट के जो वर्कर्स थे उनको डील करा। नाइट शिफ्ट वालों से तो डील करा ही नहीं, बिल्कुल असेसमेंट ही नहीं किया। अगर असेसमेंट होने के बाद अगर ये होता कि उनको इतना पैसा क्यों दे दिया, हमें इतना क्यों नहीं दिया, वो एक वहां पर आप बोल सकते थे कि इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड है, बट वहां तो इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। सर और ऐसा मतलब जैसे इन्होंने डिवाइड एंड रूल वगैरह का एक ऑप्शन दिया था, वो तो लग नहीं रहा, क्योंकि वो तो मतलब बिकॉज इंटेंशन तो ये था मिस्टर ठाकुर का कि उनको अनबायस्ड ओपिनियन लेना है। वो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, अगर मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया तो वो जब तक अपने प्रॉपर जो उसका ऑब्जेक्टिव है वहां तक, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन हो, जो पूरा प्रोसेस अगर वो नहीं फॉलो होता, जैसे उनका जो प्रोसेस क्या उन्होंने इनिशिएट किया था, प्रोसेस उन्होंने एक एचआर रिलेटेड प्रोसेस इनिशिएट किया था जिसमें सुपरवाइजर्स को कवर किया था, और दोनों शिफ्ट के सुपरवाइजर कवर ही नहीं किया उन्होंने, एक ही के करके इस शिफ्ट के और दूसरे के शिफ्ट के सुपरवाइजर को छोड़ दिया। ऐसा मतलब क्लियरली बी ही सबसे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि बाकी उतना मतलब क्लैरिटी नहीं दे रहे उससे। तो इनकंसिस्टेंसी रही उनके काम करने के तरीके में। कंसिस्टेंसी का मतलब ये कि अगर आप तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम की, तो आप रोज या तो हफ्ते में 5 दिन, पूरे महीने आप लगातार पढ़ रहे हो, और ये कंसिस्टेंसी आपने 3 महीने तक 4 महीने तक लगातार ऐसा नहीं किया कि 1 महीने पढ़ाई करी और 2 महीने पढ़ाई की नहीं और 4 सब्जेक्ट पढ़ लिया और 1 सब्जेक्ट छोड़ ही दिया, है ना? वो ये होता है इनकंसिस्टेंसी, और यही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, और यही इंपॉर्टेंट काउजल फैक्टर है जिसकी वजह से मिस्टर रामलाल जो है इन्फ्यूरिएटेड हो गए, है ना, गुस्सा गए वो।
कि बात तो कर लो, कम से कम पूछ तो लो, क्योंकि हमारी भी तो सुन लो, उन्होंने बात ही नहीं करी। ठीक है चिरंजीव? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। देखते हैं नेक्स्ट। The situation with Mr. Lal could have been avoided if Mr. Thakur had. Mr. Lal के साथ situation avoid हो सकती थी if Mr. Thakur had delegated the task of negotiation of wage contract of night shift employees to personal department, created a process for supervisors working the night shift so that they could have an opportunity to interact with him, create an open door policy that would have allowed employees to see him without any appointment. 4, postponed the decision of wage revision for supervisor in the night shift for 2 months, since supervisors were rotated on different shifts after every 2 months. सर फिर से सेकंड वाला ही होगा आई गेस। गैस नहीं, क्लियर रीजनिंग के साथ बताओ एकदम कि हाँ जी ये रीजन हमने अगर शॉर्ट लिस्ट किया है ये, तो ये इसलिए शॉर्ट लिस्ट किया है या इसलिए ऑप्शन ऑप्ट किया है, सेलेक्ट किया है ऑप्शन। प्रॉब्लम इसीलिए तो आ रही थी क्योंकि मिस्टर ठाकुर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे नाइट शिफ्ट वर्कर्स के साथ। तो अगर वो और सेकंड ऑप्शन में यही है कि अगर वो इनसे कम्युनिकेट कर लेंगे तो मतलब वो ही सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं ना, कम्युनिकेशन हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम भी प्रोसेस फॉर सुपरवाइजर वर्किंग, क्योंकि डे शिफ्ट वालों से तो बात हो ही चुकी है ना। अब वो उनको मौका दे इंटरेक्ट करने का और उनसे बात करें, ऐसा प्रोसेस। हाँ, फोकस तो डायरेक्ट इंटरेक्शन ही था, तो मतलब उस हिसाब से तो सेकंड ही होना चाहिए। चिरंजीव? हाँ सर, सेकंड वन। वानी? यस सर, सेकंड वन। ठीक है। सॉरी, ऐसे नहीं है, अभी ऐसे नहीं है, पूरा नहीं देखा क्वेश्चन। ऑप्शन दैट बेस्ट अरेंज द अबव मैनेजरियल इंटरवेंशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंपैक्ट। अब बताओ, एक तक तो ठीक है, अब आपको बताना है ऑप्शन दैट बेस्ट अरेंज द अबव मैनेजरियल इंटरवेंशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंपैक्ट। सर ई होना चाहिए शायद। ई 2 3 1 4। सर अगर 2 सबसे बेस्ट सबसे माना पहले तो आई गया तो वो तो बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि जब वैसे जब यहाँ पर मोस्ट एडिक्वेट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो एक प्रोसेस हो सकता है इम्पैक्ट के लिए, वो सेकंड वन ही है, उसके बाद आप कुछ और कर सकते हो। टू थ्री, 2 के बाद 3 क्या है? 2 3, हाँ ठीक है, 2 के बाद 3 भी ठीक है, देन 1 ठीक है, 4 तो खैर बहुत ही ठीक है ना। हाँ, seventh, the most likely premise behind Mr. Thakur's initiative regarding individualized meeting with the supervisor seems to be most likely premise. पढ़िए। Employee related policies should allow scope for bargaining by employees. Involvement of companies present in wage problem of employees will lead to a better goodwill towards management among the workers. C, individual agreement with supervisors would allow the management to prevent any possible collective action by supervisors. D, management will be able to force supervisor to accept lesser wages individually in this way. E, he would be able to know
who the troublemakers in the plant by interacting with the supervisors. The most likely premise behind the Mr. Thakur's initiative. Sir, B. मतलब why this qualm of conscience? Sorry sir. ये डाउट किस लिए? बोलने का जो आपका लहजा था उसमें ये डाउट फील हुआ। सर मतलब बी और सी में कंफ्यूजन हो रही थी थोड़ी, इसलिए, पर मेरे को बी ज्यादा लग रहा है तो इसलिए मैंने वो ज्यादा को एक सपोर्ट बेस चाहिए एक स्टेटमेंट का। हाँ सर, मतलब सर क्योंकि मेरे को लगा कि जो बी में ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें लिखे कि मैनेजमेंट की तरफ एक अच्छा ओपिनियन होना चाहिए वर्कर्स का, तो मुझे लगा कि अगर अच्छा ओपिनियन होगा तो वो कलेक्टिव एक्शन का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनता ना, जो सी में दिया हुआ है उन्होंने कि प्रिवेंट एनी पॉसिबल कलेक्टिव एक्शन बाय द सुपरवाइजर्स। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर पहले ही एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयज को अगर लगेगा कि मैनेजमेंट उनके लिए वर्क कर रही है तो सी का कोई वो ही नहीं बनेगा। मतलब सुपरवाइजर्स तो सर आएंगे ही तब। Mr. Thakur felt that by dealing directly with individuals, he could portray the management's concern for employees. An important initiative of Mr. Thakur. तो हाँ तो वही ना, तो सर वही मुझे लगा कि मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि पहले बी होना चाहिए या सी होना चाहिए, बट फिर मुझे लगा कि पहला कंसर्न तो यही था कि मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज की तरफ। तो ठीक है। हाँ चिरंजीव, वानी। हाँ सर, मेन प्रॉब्लम तो बी में थी ना, मतलब उसका मोटिव तो वही था ना। संस्कृति, ध्रुव। Yes, sir. प्रॉब्लम पढ़ी तुमने? बी। बी है, वहां पे ही पता चल रहा है। आउट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दिस स्टेटमेंट इज बीइंग सपोर्टेड बाय द इंटेंट रिफ्लेक्टेड हियर, है ना, that too directly. Out of the following, which one seems to be most likely cause of Ramlal's grievance? His appointment with management's philosophy of having one-to-one interaction as supervisors were in a way being forced to accept the wage contracts. His disappointment with the management's philosophy. His being in the night shift had worked to his disadvantage, as he could not interact with the management regarding his problem. He was not allowed to meet chairman of the board of the directors of the company. Employees in the night shift forced him to stay away from his family. Employment of his night shift forced away to stay away from his family during the daytime, and therefore he could not interact with his family members much. All of these. B. His being in the night shift had to work to his disadvantage, as he could not interact with the management regarding his problem. Yes sir, मुझे भी B लग रहा है। Yes sir, because वो नाइट शिफ्ट की वजह से ही नहीं मिल पा तो रहा था। मेन फोकस तो नाइट मतलब इसी पे था कि वो इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉब्लम के मतलब नाइट शिफ्ट की वजह से। यही है डायरेक्ट रेस्पॉन्स। उसको अगर एक बार मिलने दिया जाता तो और तो कोई दिक्कत नहीं थी, चेयरमैन से मिलने की कोई बात ही नहीं थी, मिलना सीधा जो है प्रेसिडेंट से था, तो इसलिए भी ही है। Apart from supervisors working the night shift, executives of which department will have most justified reason to be disgruntled with Mr. Thakur's initiative?
नाइट शिफ्ट में काम करने वाले सुपरवाइजर्स के अलावा executives of which department will have most justified reason to be disgruntled with Mr. Thakur's initiative? किस डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी मिस्टर ठाकुर के इनिशिएटिव से? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर नॉट बीइंग कंसल्टेड रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द सुपरवाइजर ऑन द फ्लोर, फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर नॉट बीइंग टेकन इनटू कंसीडरेशन रिगार्डिंग द फाइनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वेज कॉन्ट्रैक्ट्स, marketing department for not being consulted on the likely impact of wage contract on the image of the company, for quality control for not being able to give inputs to Mr. Thakur on how to improve quality of the steel making process, 5 personal department for it was their work to oversee wage policies for employees and they had been ignored by Mr. Thakur. बताइए। पर्सनल डिपार्टमेंट होना चाहिए ना। पर्सनल डिपार्टमेंट तो होगा अभी ही ये देखिए क्योंकि उनका सीक्वेंसेस में 1 2 3 1 4 5 1 3 4 1 2 5 3 4 5 विच वन? कौन कौन से डिपार्टमेंट्स? सर मतलब पर्सनल डिपार्टमेंट की तो Executives बात of which करी। department will have the most justified reason to be disgruntled with? हाँ जी। सर फाइनेंस डिपार्टमेंट भी हो सकता है क्योंकि वेज कॉन्ट्रैक्ट तो अपनी मर्जी से ही कर दिए। हाँ। Because वो तो मेन कंसर्न मतलब उसी की वजह से तो सारा स्टार्ट हुआ था मिस्टर ठाकुर का जो भी इंटरेक्शन वगैरह था। ऑप्शन सी Which one? होगा फिर। C 1 2 5 5। बाकी लोग बताएं। वानी, ध्रुव? सर मुझे भी सी लग रहा है बिकॉज पर्सनल और फाइनेंस तो होना ही चाहिए था। आप पर्सनल फाइनेंस बोल रहे हो, आपको सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट बोलना है? सुपरवाइजर जो सॉफ्ट फ्लोर पे काम कर रहा होता है किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है वो? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ना। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से तो सबसे पहले लिया ही जाना चाहिए ना कि क्या चल रहा है। यस सर। उसके बाद फिर बात करोगे आप फाइनेंस से और फिर फाइनेंस और पर्सनल किसी से भी बात कर सकते हो, बट सबसे पहले तो पर्सनल वाले से भी पूछना पड़ेगा, उससे प्रोडक्शन वाले से पूछना जरूरी है ना। परफॉर्मेंस कैसी है या जो सुपरवाइजरी एबिलिटीज हैं वो किस तरह की हैं और रिजेक्शन क्या आ रहा है वो भी पूछा जा सकता है। दैट इज मोर अबाउट द क्वालिटी। तो क्वालिटी कंट्रोल का कब क्या कब 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 अप्लाई होता है? हालांकि अब तो स्टेज बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल, फिर भी क्वालिटी कब चेक होती है? कब लगता है आप लोगों को क्वालिटी चेक होती होगी किसी प्रोडक्ट की? तो जैसे अगर लोगों का फीडबैक खराब आया हो तो शायद प्रोडक्शन फ्लोर से निकलने के बाद ही चेक होती है क्वालिटी, है ना। जब कस्टमर के पास जाने से पहले क्यूसी चेक होता है ना। अच्छा ओके हाँ हाँ सॉरी। तो 3 डिपार्टमेंट के जो लोग हैं एग्जीक्यूटिव्स हैं वो मिस्टर ठाकुर की जो अप्रोच है उससे नाराज हो सकते हैं। Which of the following managerial attribute does Mr. Thakur seem to lack the most? इनमें से कौन सा मैनेजरियल एट्रीब्यूट मिस्टर ठाकुर में सबसे कम है? ए इमोशनल इंस्टेबिलिटी अंडर प्रेशर, प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ethical behavior, emotional stability under pressure, independent decision making.
सर बी। बी, प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस सर, बी। बिकॉज बाकी तो मतलब ऐसा सर इंडिपेंडेंट दिखा नहीं। डिसीजन मेकिंग तो वो कर ही रहे थे। इमोशनल स्टेबिलिटी अंडर प्रेशर से इमोशंस का तो कोई रोल ही नहीं दिखा। एथिकल बिहेवियर, तो यहाँ पे एथिक्स की भी इतनी बात मतलब नहीं आ रही थी। हाँ सर, मतलब अनएथिकल तो कुछ ऐसा नहीं। हाँ, अनएथिकल तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने, है ना। और इमोशनल इंस्टेबिलिटी तो शायद सर अपने आप में ऑप्शन एक गलत है। मतलब इमोशनल इंस्टेबिलिटी मिस्टर तो होनी ठाकुर ही नहीं सीम्स टू चाहिए। लैक मोस्ट इज द प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, क्योंकि वो अगर पहले ही इस चीज को देख लेते कि कौन कौन छूट गया है, तो या ये पॉलिसी पूरी हुई है कि नहीं हुई है जो अप्रोच उन्होंने अप्लाई की है ना, जो प्रॉब्लम फोर्सी हो जाती हैं तो ज्यादा बढ़िया मैनेजर एट्रीब्यूट माना जाता है वो, कि अगर आप प्रॉब्लम को फोर्सी कर पाए और उसके अगेंस्ट आप कोई एक मेजर अडॉप्ट कर पाए। तो चिरंजीव क्या कहना है तुम्हारा? मैं भी बी के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन से कुछ मतलब ऐसा कनेक्टेड फील नहीं हो रहा ना, मतलब उसके साथ। ध्रुव, पढ़ी है ध्रुव तुमने प्रॉब्लम? ध्रुव है ही नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग केसलेट। सर मैं बोल रही थी कि इज इट कंपल्सरी दैट वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस, बिकॉज़ आई हैड अ डाउट इन 2020 का पेपर मैं कल कर रही थी। तो उसे निकाल रहे, बिल्कुल 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 उसे प्लीज टेक दैट अप, उसे उठाइए। कहाँ है वो पेपर? या चलिए मैं देखता हूँ, हमारे इसमें पड़ा होगा। 2020 का देयर वर 3 क्वेश्चंस दैट आई गॉट। आई एम गोइंग टू ओपन दैट, ओके, गिव मी फ्यू सेकंड्स। विजिबल हो गया? नो सर। एक मिनट अभी होगा। अब बताइए। सर 13th 16th और 18। 13, ओके 13। ये 2 बार ही डिस्कस हुआ शायद, आई डोंट नो, बट मैंने इसमें ए लिखा था 13th का आंसर, बट द आंसर वाज बी। ओह अच्छा, ठीक समझ गए। ये प्रॉब्लम याद आ रही है बाकी लोगों को? हाँ सर। बताइए। यस सर। वाई बी शुड बी, क्यों जो है बेस्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए। बी वाई कैन बी कंसिडर्ड एज बेस्ट वन। चिरंजीव तुम देख लो, मुझे लगता है तुमने ये प्रॉब्लम नहीं करी है। हाँ सर, ये वाली नहीं थी। देखो एक बार। मेरा गेस, मैंने आफ्टर फिगरिंग आउट दैट आफ्टर नोइंग दैट द आंसर वाज बी, व्हाट आई लाइक, मैंने जो समझा उससे, इट कुड बी रॉन्ग आल्सो, कि जब वो
सिचुएशन अभी थोड़ी सी सेंसिटिव सी है, वो हमको धमकी दे रही है कि हाँ मैं तुम्हें सू कर दूंगी, हाँ बट ठीक है, गलती हमारी तो है भी नहीं। हाँ तो ठीक है, मैंने सोचा कि डायरेक्ट पंचायत ही संभालेगी इसको। फिर वो ठीक है, पंचायत उसको रोक रही है कैनवास ग्रो करने से ही। हाँ हाँ तो उसका लॉस हो जाएगा, तो उससे तो और वो हो सकती है गुस्सा, एंड शी हाँ कैन गो। हाँ। तो इससे अच्छा जो विलेजर्स को मनाने को बोलने के लिए करा है कि तुम उसको मनाओ कि हम हमें सू ना करे। वो एक और भी देखो, इस ना जब लाइन को पढ़ोगे ना, बहुत मेटिकुलसली कुछ चीजें पढ़नी है। विलेजर्स एम्प्लॉयड बाय एमएनसी, मतलब उस एमएनसी के अंदर 250 एम्प्लॉई हैं गांव के। यस। तो वो 250 एम्प्लॉई अगर जाकर के कुछ एक प्रेशर बिल्ड करेंगे, है ना, प्रेशर बिल्ड करेंगे, परसुएट करेंगे किसी तरह से भी, तो वो एक बार को चांस है, दैट इज रादर टैक्टिकल और डिप्लोमेटिक अप्रोच, है ना। मतलब बिग डील नहीं करना, ज्यादा हाँ, बड़ा कि अगर नहीं मान कर। लो तुमने स्यू कर दिया कंपनी पे, कल को कंपनी बंद हो गई, हम 250 लोगों का क्या होगा, हमारी फैमिलीज का क्या होगा, है हाँ। कल को अगर, मतलब लाइक दैट, इस तरह से कुछ कुछ जो है उसको परसुएट किया जाए कि भाई तुम ऐसा मत करो, है ना। ऑफेंसिव लॉन्च करने से बेहतर ये है कि दूसरे तरह से कुछ समझाया जाए, ऐसे कि बगैर कुछ करे, जैसे सर पहले वाले में। इसमें मैं पर्सनल हो गई थी, एंड मैंने सोचा हाँ कि इसको सबक सिखा देना चाहिए। हाँ, बंद नहीं, करो। सबक भी सिखाने का तरीका फिर ना, उसका उसका तरीका इसमें नहीं दिया है। उसका तरीका ये हो सकता था कि उसके बारे में किसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करके किसी रूल के तहत उसको अंडर द लॉ ला करके उसको जिस तरह से वो स्यू करने की बात कर रही है, वो दूसरा एक तरीका हो सकता था कि वो जो एक इलीगल एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट को ये कार्रवाई की जाती, तब वो जो है एक रिटेलिएटरी मेजर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये वाला तो पंचायत को एक्सकम्युनिकेट कर लेने वाली कंडीशन, सर क्योंकि 13th वाले का ई नहीं हो सकता? कंपनसेट मॉनेटरी लॉस एज परसीव्ड बाय चंचला, नहीं नहीं, कैसे हो सकता है, क्यों? सर मतलब चंचल ने, मतलब ये तो मतलब जो मेन प्रॉब्लम चंचल को तब हुई ना, जब मतलब उसकी जो अर्निंग थी वो रुक गई, और नहीं, एमएनसी के लिए। लेकिन ये भी तो देखो ना, अर्निंग जो जिस वजह से थी वो वजह एक तरह से इलीगल थी। सी ग्रोस कैनाबिस, है ना। हाँ सर। अगर कोई जायज वजह होती कि उसका कुआं रुक गया, या उसका खेत में कंपनी जो काम कर रही है उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उसकी वो कम हो रही है ना, तो तब तो वो हो सकता था। तो सर वो मुझे लगा कि ये झूठ बोल रही है कि मेरा नुकसान हो रहा है। पहले नहीं, हर चीज उतने ज्यादा नहीं सोचना है, जितना प्रॉब्लम में दिया हो उतना ही सोचना है। अच्छा अच्छा। हाँ, प्रॉब्लम से बहुत हद तक कनेक्ट बना के रखना है लास्ट तक, सर कि द वर्ड अगर कहीं भी हमारा थॉट प्रोसेस अगर डाइग्रेस करता है, तो वी हैव टू समवेयर, हमें वापस जाना है प्रॉब्लम में और फिर से देखना है कि क्या दिया है, और उन्हीं जो फैक्ट्स, फिगर्स और मेजर्स जो दिए हुए उन्हीं में से हमें एक्सट्रैक्ट करना है डायरेक्ट एंड स्ट्रेट एंड क्लियर रेस्पॉन्स। तो इसमें बस। लिखा है ना, इंस्टिगेटेड बाय अ लैंडलॉर्ड विद अ वेस्टेड इंटरेस्ट। हाँ वैसे वही। ये इसके कारण ऐसे ही लग रहा है कि चंचला झूठ बोल रही है। हाँ वही वही। इंस्टिगेटेड, कि उसको लालच है, चाहिए उसको, हाँ, हमारे मतलब पास उसको पैसे ऐसे आए बोला जा रहा है कि ऐसा कर तू, इससे और या बेनिफिट मिल सकता है। रीजन ढूंढा कि ये पैसे कमा रहे हैं, व्हाई नॉट मेक मनी आउट ऑफ हाँ, दिस। नहीं, ये इम्प्रेशन आपका, ये बात ठीक है, ये बात मानी जा सकती है कि उसे इंस्टिगेट लैंडलॉर्ड्स ने किया है चंचला को, जबकि उसका काम सही चल रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी उसने झूठ बोल दिया होगा, है ना, क्योंकि उसका कोई लॉस नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी उसने बोल दिया होगा झूठ, है ना, कि स्टार्टिंग एक्यूजिंग कि उसका पानी रुक रहा है, उसकी लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो रही है। तो अगेन, लेकिन तरीका तो डील करने का वही है जो इसमें दिया हुआ है, बेस्ट मेजर तो कौन यही सा है। सर, बी वाला? B, get the blazers employed by MNC to persuade Chanchala not to sue. बट सर अगर वो कौन सा इलीगल सर? काम कर, लेकिन अगर सर, मतलब अगर चंचल गलत काम, मतलब कंपनी को डरने की क्या जरूरत, मतलब वो कंपनी पे
पंचायत अरे को क्यों लेकिन बोले ये कि एक चीज ये भी तो देखो ना कि अब आप मॉनेटरी लॉस तो उसका कंपनसेट इसलिए नहीं करोगे क्योंकि वो जो काम कर रही है, अगर ऐसे तो किसी और का भी लॉस होने लगा, हर एक कोई मॉनेटरी लॉस के लिए आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज दूसरी चीज उसके मॉनेटरी लॉस के बाद वो फिर और ज्यादा ल्यूर आप कह सकते हो कि उसके लिए एक बहुत ज्यादा एक ऑप्शन ऐसा बिल्ट हो जाएगा, कभी भी धमकी देकर के वो पैसा रिकवर करने के बारे में सोच सकती है। और इसे ये भी लग रहा है कि हम हार मान रहे हैं उसके सामने। नहीं, हार मानने वाली कोई बात नहीं होती। अगर जस्टिफिएबल है तो वो कंपनसेट भी किया जाता है, लेकिन वो जस्टिफिएबल है ही नहीं ना। ओके सर ए वाला नहीं हो सकता फिर? अब तुम मुझे बताओ, कौन गांव की पंचायत अपने गांव में रहने वाले को जो शराब बहुत पीता हो या शराब बेचता हो उसे गांव से बाहर निकाल देगी? और कैसे ऐसा पॉसिबल है? ये बेस्ट मेजर कैसे हो सकता है? सर, क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप है पंचायत के साथ, इट्स लाइक वो ऐसी रिलेशनशिप है कि हम भी उनको ऐसा हो। हाँ, एक बात और भी है, आई शुड टेक माय वर्ड्स बैक। प्रैक्टिकली more the approach which is less मतलब जिसके अंदर आप बात कर सकते हो कि जो टेक्निकल अप्रोच है और जो एक डिप्लोमेटिक जो वे है वो वाकई में बी ही है। सर बी जो है, बी में भी ऐसा है कि चुपचाप से ही विदाउट लेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल नो। भाई आप इसमें एक चीज ये देखिए, जिन लोगों ने उसको इंस्टिगेट किया उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़े लोगों का सपोर्ट भी कंपनी ने ले लिया, जिनको एम्प्लॉय किया हुआ है। अगर मान लीजिए कुछ लोग उसको उकसा रहे हैं तो कुछ लोग उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई मत करो ऐसा, हमारी नौकरी का सवाल है ना। हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट। तो वो ऐसे केस में कंपनी के पास एज है क्योंकि उसने 250 लोगों को नौकरी दी हुई है और उसी गांव के। ठीक है ना। ये एक रीजन है इसका जो बहुत ही वैलिड तरीका है प्रॉब्लम को, इस तरह की प्रॉब्लम को डील करने का। सर नेक्स्ट मेरा डाउट था 16th में। सर ये एक्स कम्युनिकेट से मतलब समझा नहीं, इसका मतलब नहीं का समझा, मतलब क्या होता है कहना चाह रहे निकाल हैं? देना एक तरह से। एक्स कम्युनिकेट का मतलब होता है निकाल देना, हटा देना, बाहर भेज देना। समझे चिरंजीव? सर तो फिर हम ये भी तो कर सकते थे, उसको चंचल को बाहर ही निकाल दे, कैनबिस अरे कल्टीवेट करने से। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। अरे इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी देखो तुम खोजो, इसमें ऐसा सर नहीं इसका है। आंसर क्या है? इसका आंसर क्या आंसर है? बी है। बी है? बी है। हाँ, ओके। इसका आंसर बी है। अरे ओके। ये Get the वाले Blazers employed by MNC to persuade Chanchla not to sue। जो गांव के लोग एमएनसी में नौकरी कर रहे हैं, 250 लोग, उनकी फैमिली गांव में रहती है, वो चंचला के पास जाके उसको परसुएड करें कि भाई तुम केस मत करो। कई तरह से परसुएड कर सकते हैं, कई तरह से, एक तरह से नहीं कि एक तो तरीका ये कि तुम गलत काम कर रही हो, ये भी गांव के लोग दबाव बना सकते हैं। दूसरा, किन लोगों की शिकायत पढ़ाई में आ रही हो, ये भी दबाव बना सकते हैं। अब उसके बाद कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी करने जाएंगे हम। अगर कंपनी ने बाई चांस यहाँ से प्लांट शिफ्ट करने का सोचा या कुछ लोगों को तुम्हारे चक्कर में नौकरी से निकाल दिया तो ये एक तरह की सोशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम है ना। इसमें कंपनी का कम्युनिटी से इंटरेक्शन है, अब वहां किस तरह से डील करना है, क्योंकि इनसाइड कंपनी अलग तरह से कुछ डील होता है और आउटसाइड कंपनी थोड़ा अलग तरह से डील होता है। समझ रहे हो? आउटसाइड कंपनी दो ही तरह से डील होता है, या तो आप एक टेक्निकल अप्रोच लगा के किसी तरह से इन्फ्लुएंस या कोई किसी तरह का कोई एक प्रेशर क्रिएट करो, या दूसरा तरीका बाई मूविंग थ्रू लॉ है, कानून के से आप फिर आगे बढ़ोगे। समझ में आई बात? यस सर।
वैसे ये जो डिसीजन मेकिंग का ये जेवियर का जो इंस्टीट्यूट है दैट इज नोन फॉर इट्स ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड कोर्सेज, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को वो लोग उन लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर में डिसीजन मेकिंग को रखा है. दिस somewhere gives us insight related to different or variety of problems. Somewhere we feel connected to these problems because we have either we read these problems in somewhere in newspapers, वो हमारे आसपास ही हो रही होती हैं, या कहीं ना कहीं हम भी इन प्रॉब्लम्स को बहुत डायरेक्टली रिलेट भी करते हैं, कहीं कई बार तो इन्वॉल्व भी होते हैं. तो ये प्रॉब्लम्स ये एक्चुअल में है तो काफी हद तक कोर्स जब आप पढ़ रहे हो, कोई एमबीए करेगा या पीजीडीएम करेगा, वहां पर ये सब कराई जाती है. बट बिफोर दैट इट इज अनदर वे टू चेक द एप्टीट्यूड ऑल्सो. क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल साइकोलॉजी का है, और आप द वे यू थिंक, द एटीट्यूड मेजरमेंट एंड ऑल. तो कौन सा, हाँ उसके बाद कौन सी प्रॉब्लम थी बताओ मेहर. सर 16th. अच्छा, इसके लिए जो था चंचला एमएनसी, हाँ विंध्या, सबनम एंड आमला आर इंटर्न इन सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन. ये प्रॉब्लम आप में से कितने लोगों ने नहीं की है? पढ़ लीजिए इसे फटाफट एक बार, जिन लोगों ने भी नहीं की है. Vindhya, Sabnam and Amla are interning at a software organization as part of the requirement of their B school curriculum. The organization has allotted each of them a project based on their area of specialization. In the first meeting with the HR head, they are informed of a PPO possibility pre-placement offer, an offer to join the company after their MBA. Based on their performance, all of them are eager to convert their internship into a job offer. Each of them is assigned a mentor who evaluates the intern's performance along with the HR head. समझ में आई? विंध्या, सबनम, आमला सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर रहे हैं. बिजनेस स्कूल के करिकुलम का वो पार्ट है. ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉट किया है प्रोजेक्ट उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, और पहली मीटिंग में एचआर के साथ उनको प्री प्लेसमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी का ऑफर, मतलब इंफॉर्मेशन मिला एमबीए करने के बाद. बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर सभी लोग उस इंटर्नशिप ऑफर को जॉब ऑफर में, इंटर्नशिप को के बाद मिलने वाले पीपीओ की पॉसिबिलिटी से जो उनको नौकरी दिला सकता है उसमें इंटरेस्टेड थे. सब उन तीनों को असाइनमेंट दिया और उनको उनका एक इंटर्न जो इवेल्युएट करने के लिए उन इंटर्न्स की परफॉर्मेंस को एक मेंटर भी दिया, असाइंड ए मेंटर, और अलोंग विद एचआर हेड के साथ. अब उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है. इन द सेकेंड वीक ऑफ हर 8-week internship, Amla realizes that project requires input from subject he studied in 3rd semester. However, during the 3rd semester, Amla was significantly distracted by an inter-college sports meet, affecting her grasp of subjects. Which of the following is most appropriate way forward for Amla? Second week of 8-week की internship में second week में आमला को महसूस हुआ कि प्रोजेक्ट को जो रिक्वायर्ड इनपुट चाहिए थी वो सब्जेक्ट 3rd सेमेस्टर में उसने पढ़े थे, और क्योंकि 3rd सेमेस्टर के दौरान वो इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, तो वो उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं पाई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट वे फॉरवर्ड फॉर आमला? आमला के लिए सबसे बढ़िया तरीका आगे बढ़ने का, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का क्या होगा? ए, आमला शुड सीक सबनम्स हेल्प हु performed well in 3rd semester. B, Amla, after studying organization for a week, should design her own project and pitch it to her mentor. C, Amla should request her mentor to allocate a different project because of her limited familiarity with inputs required. D, Amla should disclose to the mentor her limited understanding of the required inputs and seek her suggestions. E, Amla should realize that C may not get
a PPO and so focus on networking with experienced talent on the organization. हाँ जी, मैंने इसका ए कर दिया था कि जिस चीज में वो लैक कर रही है वो अपने Amla friends should से seek switch कर Shabnam दे। self perform well in the third semester. ए क्यों कर दिया? ए आपने इसलिए कर दिया कि आप क्या लगा आपको ए में कि चलो शबनम ने अच्छी पढ़ाई कर ली है थर्ड सेमेस्टर में, तो उसकी हेल्प लेकर के मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, है ना? क्योंकि हाँ मैंने सोचा था यस सी, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जब आप प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, दिस कैन बी वन वे फॉरवर्ड, बट दिस इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। सर मुझे तो डी लग रहा है। हाँ डी आंसर है, डी है उसका। आमला शुड डिस्क्लोज टू द मेंटर हर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट्स एंड सीक हिज सजेशन, और उनका सजेशन और उनके सजेशन के हिसाब से आगे बढ़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा एक बात ये भी हो सकती है कि शबनम हरसेल्फ इज न्यू टू दिस काइंड ऑफ इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा आता होगा, लेकिन कहीं अगर वो भी फंस गए तो क्या होगा? तब भी तो जाना मेंटर के पास ही पड़ेगा ना। तो मैंने सोचा था अगर मेंटर के सामने इसने ये बोला कि मुझे ये नहीं आता तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, फिर उसको इंटर्नशिप से जॉब नहीं मिलेगा। और तो फिर झूठ बोल के नौकरी लेने से भी तो गड़बड़ हो जाएगी ना बाद में, है ना? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वे तो काम करने का यही है। ध्रुव क्या कहते हो? चिरंजीव, व्हाट्स योर ओपिनियन? मेरे को भी सर, मेरे को बी भी लग रहा है वैसे सर। अगर मतलब जो वो सब्जेक्ट पे उसको नहीं आता, उस पे अगर वो थोड़ी मतलब हफ्ते भर के लिए मेहनत करे और अपना नया प्रोजेक्ट बना के उसको अपने मेंटर को दिखाए या उसका आइडिया पिच इन करे। ना 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 ना, कैसे? देखो डायरेक्ट की तरफ जाओ, ये तुम्हारी बात ठीक है, बट इट इज नॉट डायरेक्ट। उससे करके वो काम भी तो उतना एक वीक वेस्ट कर देगी ना, और लाइक जो काम दिया वो नहीं, ये आप ये तो देखो, मेरा आइडिया तो ये था, मैंने तो चिरंजीव, इसलिए आपको प्रॉब्लम के अंदर रहते हुए ही सॉल्व, इस प्रोपोजिशन के अंदर रहते हुए सॉल्व करना है, और ये जो प्रॉब्लम है और उसमें क्लैरिटी देखनी है। ये चीज नहीं, ये चीज कहाँ से हो, कैसे हो पाएगी ये चीज? एक हफ्ते चलिए पढ़ भी लिया, आफ्टर स्टडीइंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए वीक, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक हफ्ते तक स्टडी कर ली, अपना एक प्रोजेक्ट डिजाइन कर लें और मेंटर को पिच करें। ये वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हो रहा ना जो दिया हुआ है। नया प्रोजेक्ट के बारे में कितना बनाएंगे अब? कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फिर उसके बाद उसको लेकर के जाना। इतनी ऑफर मेंटर जरूरी है माने? ओके, पहले यही काम करो ना। कोई भी मेंटर क्या बोले, अरे पहले जो हमने काम दिया ऐसे करो पहले, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन सर 18th वाला था, 17th वाज राइट मेरा। Shabnam, who is working on sales executives work-life balance, has collected the following detail about her frequent travels. Frequent meetings help strengthen relationship with key customers. Traveling has no effect. ये कोई और प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर यही वाला है, वही है। Traveling has no effect on personal life of sales executive, as most of them are single. Travel enhances the financial health of the sales executive since their fixed salaries are low. Frequent travel has no significant impact on the market budget given the current high margin from the sales. The sales executive have the autonomy to decide the frequency of their travel. Shabnam thinks that the frequency of travel is higher than required. Which of the following combinations of the above reasons can enable Shabnam best substantiate her thinking? Shabnam, who is working on sales executives work-life balance, has collected the following details about their frequent travel. उनके frequent travel के बारे में उसने कुछ एक डिटेल कलेक्ट किया सेल्स एग्जीक्यूटिव की वर्क-लाइफ बैलेंस के बारे में, who is working on सर, ठीक है। Frequent meeting helps strengthens relationship with key customers. ज्यादा मीटिंग से कस्टमर से रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होती है। Following details about the field, ठीक है। Traveling has no effect on personal life of the sales executives as most of them are single. Traveling जो है उससे कोई पर्सनल लाइफ ज्यादा इफेक्ट नहीं होती सेल्स एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि ज्यादातर उनमें से सिंगल है।
travel enhances the financial health of the sales executive since their fixed salaries are low. ट्रैवल जो है वो फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव की उससे फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो जाती है क्योंकि उनकी फिक्स सैलरी काफी कम है. Frequent travel has no significant impact on market budget, but the current high margin from sales, मार्केट बजट पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है फ्रीक्वेंट ट्रेवल का, गिवन द करंट हाई मार्जिन ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल्स का जो हाई मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो काफी हाई है ऑलरेडी. Fifth, sales executives have the autonomy to decide frequency of their travel, and Sabnam thinks that a frequency of travel is higher than required. सेल्स एग्जीक्यूटिव को अपनी ट्रैवल की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने की ऑटोनॉमी है, और सबनम को लगता है कि उसकी जो ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंसी है वो जरूरत से ज्यादा है सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की. Which of the following combination of the above reason can enable Sabnam best substantiate her thinking? कौन उसके सोचने को बेस्ट सिद्ध कौन सी चीज करती है, कौन कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस? सर इससे उसको अचीव क्या करना है, लाइक मतलब मैं इस क्वेश्चन से का पर्पस ही नहीं समझ पा रही, लाइक व्हाट शी वांट्स टू अचीव. उसको लग रहा है कि ये जो ट्रैवलिंग लोग कर रहे हैं दैट इज मोर देन रिक्वायर्ड, सो दैट हाइपोथेसिस नहीं, जो उसकी थिंकिंग है उसको प्रूव करने के लिए कौन से ऊपर वाले पॉइंट्स बेस्ट है. ओके ओके. Sabnam, who is working the sales executives work life balance, प्रकृति ये वर्क लाइफ बैलेंस के को सेल्स एग्जीक्यूटिव की वर्क लाइफ बैलेंस की स्टडी कर रही हैं, और स्टडी करते वक्त उन्होंने ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल की, फ्रीक्वेंट ट्रैवल की डिटेल्स कलेक्ट की हैं. ये डिटेल्स हैं. Which of the following combination of the above reason can enable Sabnam best substantiate her thinking? Problem. ये Sabnam thinks that the frequency of travel is higher than required. ये प्रकृति का क्वेश्चन सही था मेहर, समझो ये वाली जो लाइन है ना, एक्चुअल में दिस लाइन इज हर थिंकिंग. Sabnam think that the frequency of travel is higher than required. ये Sabnam की थिंकिंग है. अब इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है of the above reason can enable Sabnam best substantiate her thinking? सर ट्रैवलिंग हैज नो इफेक्ट ऑन पर्सनल लाइफ, हम करेंगे ही नहीं क्योंकि वो पर्सनल लाइफ की सिर्फ वो स्टडी कर रही है ओवरऑल, बट दीज स्टेटमेंट्स आर हर ऑब्जर्वेशंस. बट वो सोचती है कि जरूरत से ज्यादा वो ट्रैवल कर रहे हैं. हाँ, तो इस वाला ये point हम Sabnam करेंगे thinks the frequency of travel is higher than required. और रिलेशनशिप्स भी नहीं करना क्योंकि दैट अगेन गोज इन द पर्सनल लाइफ. अब ऊपर के पांचों ऑब्जर्वेशन में से उसकी इस थिंकिंग को बेस्ट सब्सटेंशिएट कौन सा कॉम्बिनेशन कर रहा है? सबनम को लगता है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव जरूरत से ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये इनेबल कर रही हैं सबनम को ये उसकी थिंकिंग को बेस्ट इनेबल कर रही हैं कि हाँ ये इस वजह से ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं? सर मैंने इसका डी किया था 2, 3, 4 but I was wrong. 2, 3, 4 travel has no effect on the personal life of sales executive. Most of them are single now. And 3 travel enhances the financial health of executive since their fixed salaries are low. ठीक है. 4 frequent travel has no impact on the market budget given the current high margin from the sales. And 5th, sales executive have autonomy to decide the frequency of their travel. तो सबनम तो एक तो पीछे दिया था, मैंने देखा था. The answer was E. 3, 4, 5. हाँ जी. 3, 4, 5. 4, 3 और 5 तो काफी हद तक रिलेट कर रहे हैं क्योंकि मेरे को 135 लग रहा है. हाँ, सी वाला 135. 135. Frequent meeting helps strengthen relationship with key customers. क्योंकि उसने मतलब शबनम ने मतलब कहा है ना कि उसको लग रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, मतलब जो लोग हैं वो ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं. और ये वाला रीजन हो सकता है कि क्योंकि मतलब इस वजह से जो कस्टमर्स हैं
उनकी रिलेशनशिप आपस में अच्छी हो रही है। Sabnam thinks that the हाँ frequency वैसे of रीजन travel तो is सही है, 135 हो सकता है, never हाँ? thought that. so 135 भी हो सकता है मेरे नहीं, लिए। Sabnam thinks that the frequency of travel is higher than required. Sabnam को ऐसा लगता है अपनी स्टडी करने के बाद कि जो उनकी ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंसी है वो जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है। हायर देन रिक्वायर्ड, ये समझिए। रिक्वायर्ड मतलब 2 या 3 विजिट में भी कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है, लेकिन वो हो रही है 6। समझ रहे हो? यस सर। अब अगर वो 3 में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से, डेटा से या नेचर ऑफ जॉब से या उससे ये पता चल जाता है कि इतने में काम इन जनरल हो जाता है, ठीक है ना, रिलेशनशिप का जो रहना है। तो अगर वो उससे ज्यादा हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी अदर वे कुछ एक काइंड ऑफ मतलब कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने, मतलब आप ये कह सकते हो कि नॉट कंपनसेट, ये एक तरह का डिफल्केशन कह सकते हो कि जी अब हमें तो छूट है कि हम कितनी भी ट्रेवल फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं, तो हम 4 की जगह 6 रख लेते हैं। 2 में अपना इधर उधर ऐसे घूम करके और बिल लगा देंगे, पैसा फिक्स सैलरी कम ही है तो चलो थोड़ा सा इधर से बच जाएगा। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये अप्रोच बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या उनका पैसा गबन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये अप्रोच है, ठीक है ना। तो सबनम को कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे वो ये हिंट मिलती है, ठीक तरह से सब्सटेंशिएट करती है, ये रीजन उसको मिलते हैं? 3 और 5 तो पूरी तरह से हिंट दे रहा है। सबसे पहले नंबर पर 5th नंबर ये हिंट दे रहा है कि अगर किसी भी ट्रैवल सेल्स एग्जीक्यूटिव को अपनी ट्रैवल फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने का हक है ना, तो वो ज्यादा डिटरमाइन कर सकता है। उसके बाद उसको कोरिलेट किया उसने कि उनकी फिक्स सैलरी कम है, तो उनसे उनकी फाइनेंशियल हेल्थ इस तरह से बढ़ाने का एक तरीका उनके पास हो सकता है, ठीक है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर उन्होंने ट्रैवल फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो फिर उस तरह से सेल्स भी बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा इस वजह से क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रैवल हैज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन मार्केट बजट। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मार्केट बजट पर नहीं आ रहा है फ्रीक्वेंट ट्रैवल की वजह से, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि करंट मार्जिन सेल्स का वो काफी हाई है। तो ये तीनों चीज काफी हद तक ऐसा लगता है कि सब्सटेंशिएट कर रही है उसकी इस थिंकिंग को कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल है वो कंपैरेटिवली हायर है। अभी क्लास में ओवर करता हूँ, यू जस्ट थिंक ओवर दिस क्वेश्चन वंस अगेन, ठीक है ना, और सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर।